Hello students, just I am welcoming to Knowledge Point channel. In this video, just I am going to make you trend for finding trigonometric ratio of some specific angles with 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. As you know, there are 6 T ratios: sine, cos, tan, cos x, sec, cot. Okay, so this is the third part of the trigonometry, and after that, just I will solve the exercise 8.2. First of all, trigonometric ratio of some specific angles. How can you find this? So, first of all, suppose the topic to find, okay, 30 degree and 60 degree with all T ratios. How can you find? First of all, we take acute angular triangle with all sides equal. Acute angular triangle with all sides equal. That means equilateral triangle. Okay, let ABC be an acute angled triangle with all angles measure 60 degree. That is, triangle ABC is equilateral triangle. Then what will happen? AB equal to BC equal to AC. Let A, the side measure A, here 60 degree, 60 degree, this one 60 degree. Now draw perpendicular AD. Draw AD perpendicular BC. Okay? So you see this is 90, angle ADB equal to angle ADC equal to 90 degree. And this will 30 degree and 30 degree. Then angle BAD equal to angle CAD equal to 30 degree. So just in right triangle, and you see triangle ABD is congruent triangle ACD. How? You see this angle equal to this angle, and this angle equal to this angle, and this AD is common. That's why क्या होगा? BD equal to CD. BD equal to CD equal to A by 2 because BC by 2. Now in triangle ABD, so hypotenuse AB square equal to AD square plus BD square, and as A by 2, A by 2. So AB A square equal to AD square plus BD square, that means A by 2 whole square. A square और ये bring to left side A square by 4 equal to AD square. Here 4A square minus A square by 4 AD square. This means AD square equal to 3A square by 4. Hence AD is equal to root 3A square by 4. Root 3 by 2A. Now you see 60 degree and 30 degree can be found from this triangle ABD. In triangle ABD,
there are two acute angles with two different measures. Here 30 degree, for 30 degree BD perpendicular and AD base. For 60 degree AD perpendicular BD base. So first we measure for 30 degree. Sin 30 degree, that means perpendicular BD by hypotenuse AB. So BD means A by 2 by A. This is 1 by 2. Cos 30 degree, it is cos 30 degree base AD by hypotenuse AB. AD means, you see here, root 3 by 2A by ABA. That means root 3 by 2. Tan 30 degree P by B. Tan 30 degree PBD by AB. You know BD means A by 2 and AD means root 3 by 2. 2 to root 3 by 2A. Here AA cancel and 2 cancel. So here 1 by root 3. Now cosec 30 degree. You know 1 by sin 30 degree, reciprocal. 1 by sin 30, that means 2. And sec 30 degree. You know 1 by cos 30 degree, that means 2 by root 3. And cot 30 degree, that means 1 by tan 30 degree, reciprocal of tan, so root 3. In this way we have found sin 30 to cot 30. Now for sin 60. Sin 60, perpendicular by hypotenuse, perpendicular AD by AB. AD by AB. AD by AB. AD means root 3 by 2A by A. Root 3 by 2. Cos 60 degree, base by hypotenuse, BD by A, BD by AB. BD by AB. BD means A by 2, AB means A. So this is 1 by 2. And tan 60 degree, perpendicular by base, 60 का perpendicular AD by BD. AD by BD. AD means root 3 by 2 and BD 1 by A by 2. A by 2, root 3 by 2A. A cancel and here 2 cancel, that means root 3. Okay. Now you see just reciprocal formula, just from reciprocal formula. Cosec 60 degree, that means 1 by sin 60 degree, that means 2 by root 3. Sec 60 degree, that means 1 by cos 60 degree, that means 2. And cot 60 degree, that means 1 by tan 60 degree, that means 1 upon root 3. So here are students, by geometrical method, yes, geometrically ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. बाय जियोमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30, tan 30, sin 60, cos 60, tan 60 and any ratio of the 30 degree, 60 degree. So you can find it in this way. Okay students, now you are going to discuss how to find 0 degree and 90 degree with all t ratios by geometrical. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 डिग्री के लिए, सेकेंड 90 डिग्री के लिए 1 by 1 करता हूँ. सो फर्स्ट वी मेक द फिगर ऑफ द ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल है ये.
Okay, so here A, B and C. ध्यान से देखेंगे. This angle is theta here in triangle ABC. Angle A equal to theta greater than 0 degree. But when, देखिए क्या होगा, इनको जीरो बनाना है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जीरो बनाने के लिए क्या होगा, यहीं पर देखना है. ये जीरो कब आएगा, ये जीरो तब आएगा when angle A becomes 0. देन क्या होगा, देखिए ये C और B कोइंसाइड करेगा. B एंड C पॉइंट और वर्टेक्स कोइंसाइड्स, कोइंसाइड. तो इस तरह हो जाएगा. देखिए ये हो जाएगा और ये जो है आपका ये गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा. ये दोनों गायब, ये गायब, मतलब C पूरे एलिमिनेट हो जाएगा. C आपका यहाँ आ जाएगा, A जहाँ है वहीं रहेगा. दैट मीन्स ये लाइन को कोइंसाइड करेगा, ये बिल्कुल 0 डिग्री. ओके, और ये जो आपका C और B के निकट आ गया, ये दोनों से. दैट मीन्स क्या हो गया, पहले तो ये सा, तो AC इक्वल AB हो गया कोइंसाइड एंड AC इक्वल हो जाएगा. देखिए AC और AB इक्वल एंड जो ये हमारा BC है वो BC 0, तभी 0 डिग्री एंगल मिलेगा. इसके बाद देखिए अब हमको 0 डिग्री फाइंड करना है इसके टर्म में. मतलब दैट मीन्स थीटा 0. अब साइन 0 डिग्री, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 0 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर तो वही होगा BC बाय हाइपोटेन्यूज AC. बट देखिए BC यहाँ क्या है, 0. BC क्या हो गया, 0 हो गया. और बाय AC, तो AC कुछ भी रहे 0. AC इक्वल टू BC है, आप दे दीजिए. AC इक्वल टू AB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने देखा साइन 0 0 आ गया. अब कॉस 0 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 0 के लिए बेस तो वही होगा AB बाय AC, तो ये 1 आ गया AB बाय AC. और tan 0 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 0 के लिए परपेंडिकुलर क्या, BC, परपेंडिकुलर BC बाय बेस क्या होगा, और AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है. ओके, एंड BC यहाँ क्या है, देखिए BC 0, तो दैट मीन्स 0 बाय AB 0 लाएगा. और जब हमारे पास साइन 0, कॉस 0, टेन 0 है, तो कॉसेक 0, देखिए इसी का हम रेसिप्रोकल कॉसेक 0 डिग्री 1 बाय साइन 0 डिग्री, दैट मीन्स 1 बाय 0 का नॉट डिफाइन. फिर सेक 0, ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस 0, तो कॉस 0 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 बाय 1. ओके, कॉस 0 1, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1. और कॉट 0 मीन्स क्या, 1 बाय टेन 0, 1 बाय टेन 0 मीन्स 1 बाय 0, दैट मीन्स ये भी नॉट डिफाइन.
सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टू फाइंड 0 डिग्री हाउ कैन यू फाइंड। अब हम इसी को 90 डिग्री के लिए अब लेकर के आते हैं आपके लिए। ओके, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट पॉसिबल। आइए और फिर एक बार हम वही राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फॉर 90 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल डिफाइन कर ये ड्रॉ करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पर 90 डिग्री हमको, ये थीटा है, थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है। ओके, बट हमको क्या करना है कि इसको 90 बनाना है। उसके लिए आपको ये जो सी ए है ना, सी ए को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब ये यहाँ आएगा ऐसा, क्योंकि ये 90 है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ ए और बी जो है ना कंबाइंड हो जाएगा, मतलब सी अपने पोजीशन पर ही रह जाएगा। ये देखिए, और ये जो है आपका, ये इस तरह से ये एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, ये भी सिकुड़ करके गायब हो गया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स कि ए और बी जो है वो कंसाइड कर गया, ए बी कंसाइड कर गया, बी तो अपने पोजीशन में ही है और ए यहाँ आ गया। दैट मीन्स जो ए यहाँ था वो अब ए भी 0 हो गया। तो देखिए, व्हेन ओके A coincides B, A coincides B, then acute angle theta is equal to 90 degree, and जो AB है, AB वह 0 हो गया। देखिए, AB 0, क्योंकि A और B तो सेम जगह पहुंच गया। ओके, और AC देखिए, AC यानी CA और CB इक्वल हो गया, AC इक्वल टू BC। ओके, तो अब देखिए, हमको ये 90 के टर्म में हमको लेकर के इसको समझना है 90। तो नाउ साइन 90, परपेंडिकुलर तो वही है BC, बाय हाइपोटेन्यूज तो वही है AC। अब देखिए, AC और BC इक्वल है, तो ये 1 हो गया। यहाँ लिख दीजिए रीजन, सिंस AC इक्वल टू BC, तो दो इक्वल का डिवीजन कोसेंट, डिवीजन नहीं, दो इक्वल डिवीजन का कोसेंट जो है वो 1 आता है। cos 90 डिग्री, ये थीटा 90 है, तो बेस AB बाय हाइपोटेन्यूज AC। बट देखिए, AC और BC, सॉरी, AB 0 है, बाय AC दैट मीन्स ये 0 आ गया। आपने क्या देखा, साइन 90 0, cos 90 0। आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 10, देखिए आपके पास क्या डिफाइंड, इट इज डिफाइंड कि साइन 90 क्या आ गया, 1, cos 90 0। आप यहीं से निकाल सकते हो, 10 90 क्या होता है, साइन 90 बाय cos 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1, cos 90 का 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, cosec 90, 1 बाय साइन 90 डिग्री, यानी 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। sec 90 डिग्री, 1 बाय cos 90 डिग्री, 1 बाय 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एंड cot 90 डिग्री, 1 बाय 10 90 डिग्री, क्या है, 1 बाय 10 90, here 10 90, not defined, that means 0. So students,
just I have described from 0 degree angles to 90 degree angles, and in between 30 degree, 45 degree, 60 degree, with all trigonometrical ratio, which will be very helpful to you in the coming exercise. Now I am going to discuss the exercise 8.2. Students, just I brought for you to find 45 degree. हमने अभी तुरंत सिखाया. Just you have learned with the angle 30 degree and 60 degree. In place of 30 degree and 60 degree, just I am keeping 45 degree and to find the value. तो हम इसमें डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल लेंगे. इसमें लेंगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. क्या होता है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल? हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये 90 डिग्री. इसमें BC और AB का मेजर इक्वल लेना है, तो हमने इसको A और A मेजर कर लिया. कैसा ट्रायंगल लिया? लेट ABC बी राइट ट्रायंगल तो है ही, राइट, और आइसोसेलेस भी है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एंगल B को 90 डिग्री मेजर कर लिया और AB इज इक्वल टू BC को A रखा. और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर 2A स्क्वायर, AC इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर, जो रूट 2A यूनिट्स में है, सारे यूनिट्स में है. ये यूनिट्स हो गया, ये भी यूनिट्स हो गया. अब यहाँ ये हमारे पास रूट 2A आया. राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये 45 और 45 होते. ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल होता है, और ये 90 है और ये दोनों का सम कितना होगा? इक्वल. तो एंगल A प्लस एंगल C 90 टू एंगल A और टू एंगल C 90, that is angle A equal to angle C equal to 45. तो ये हमने 45 डिग्री लिया. और हमारे पास में क्या है कि साइन 45. तो साइन 45 परपेंडिकुलर AB बाय हाइपोटेन्यूज AC. तो परपेंडिकुलर A बाय AC is root 2A. जस्ट कैंसिल होकर के 1 बाय रूट 2. cos 45 डिग्री बेस BC बेस बाय हाइपोटेन्यूज AC, दैट मीन्स A बाय रूट 2A 1 बाय रूट 2. tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मतलब हुआ परपेंडिकुलर AB बाय बेस BC, यानी A बाय A यानी 1. अब ये तीनों का रेसिप्रोकल, जैसे cosec 45 डिग्री, तो 1 बाय साइन 45 डिग्री यानी रूट 2. 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2. cos 45 डिग्री, इनके रेसिप्रोकल sec 45 डिग्री 1 बाय cos 45 डिग्री, तो ये 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2. एंड नाउ cot 45 डिग्री 1 बाय tan 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड the 45 degree angle measures with the all trigonometrical ratios. Okay, now we have to make you how can you learn the
value of 0 degree and 90 degree with all trigonometrical ratios.